میں نے بچے کی خاطر اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دی۔ میری سہیلی یتیم تھی۔ اس نے کہا کہ زندگی بھر میں تمہاری غلامی کروں گی، لیکن شادی کو 3 دن ہو چکے تھے اور میرا شوہر کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سہیلی سے پوچھتی تو وہ شرماتی ہوئی کہتی کہ وہ تھک جاتے ہیں، اس لیے سوئے رہتے ہیں۔ ایک دن چپکے سے اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ میری چیخ نکل گئی کیونکہ میری سہیلی نے میرے شوہر کو ریاض اور میری شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ریاض مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ میں بانجھ تھی، مگر میں نے ریاض سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور ریاض نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری سچائی اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی کہنے لگی تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ میری امی مجھ سے دشمنی نکال رہی ہیں کیونکہ میں نے ان کی بہت بدنامی کرائی تھی۔ میں غصے سے بولی امی مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ شام کے وقت جب ریاض گھر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر بولا کیا بات ہے آمنہ، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں، میں تو اجڑ گئی ہوں۔ ریاض کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ریاض کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر ریاض پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی بات نہیں آمنہ، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ریاض کے تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، لیکن ایک دن کی بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس ان سے کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب ریاض گھر واپس آیا تو میں نے رو رو کر اسے ساری کہانی سنائی۔ ریاض نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کے بولا امی، آمنہ کے علاوہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اسی لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کی بات بھی مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگی میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ ریاض کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ریاض کا پیار میرے لیے ایسے ہی بنائے رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ ریاض کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں اپنا نام سن کر چونک گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہ کرو، میں آمنہ کو طلاق دلوا کر ریاض کی دوسری شادی ضرور کروں گی، تم ایسا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے قدموں سے تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی امی کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی کو فون ملا دیا اور میں رونے لگی تھی۔ امی بولی آمنہ بیٹا تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی امی میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں
तब से हर वक्त मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। अम्मी, रियाज बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक न एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी, इसीलिए तो तुम्हें उस दिन इस बात का मैंने बोला था कि तुम रियाज की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो। वो अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे शोहर ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो, वो तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चा पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। अम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बोली, अम्मी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि रियाज की दूसरी शादी करवाऊं, बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि ये बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने शोहर की शादी करवा रही थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी और मुझे रियाज पर यकीन था कि रियाज का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा और इसीलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे रियाज के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव की चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और वो ये थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम राशिद था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो उसको बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर राशिद बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। तालीम तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वो फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। अम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन राशिद को तो अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे नफरत ही हो गई थी। राशिद की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी कि वो गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था। मुझे आमना की जगह जान कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता कि जान, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं राशिद से कहती कि गांव की सारी लड़कियां ही तुम्हारी जान ही हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वो कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार राशिद मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। राशिद की इन हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैं राशिद की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार राशिद की आंखों में आंसू देखे थे और राशिद की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन राशिद इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जागी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। अम्मी पापा से बात करती तो वो कहते कि कोई बात नहीं, अभी वो बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर, कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की दरख्वास्त दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और ज़मीन वगैरह का कह कर गई थी। गांव में एक बहुत ही बड़े अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहाँ सब लोग ही पापा के डेरे में ठहरे थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था और उसका नाम था रियाज। उसको इस गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से इजाज़त लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र रियाज पर पड़ी थी। पहली ही नज़र में मुझे रियाज पसंद आ गया था। रियाज की आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं रियाज से खुद ही मिलने चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतज़ार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने अम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर राशिद के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वो तो बहुत ही अजीब इंसान है, मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने रियाज से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ, हो सकता है मेरे माँ बाप को मुझ पर तरस आ जाए।
रियाज ने हामी भरी थी और वापस शहर चला गया था और फिर पूरे एक हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी अम्मी मेरी दिल जोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने अपने पापा से बात करने का फैसला कर लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं राशिद से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा मैंने राशिद की माँ को जुबान दे रखी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं राशिद की माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। बाबा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। बाबा ये कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी वक्त रियाज को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वो कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी रियाज के साथ शहर भाग गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी मगर मैं मजबूर थी। मैं रियाज को खोना नहीं चाहती थी। रियाज ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब रियाज की माँ को पता चला कि रियाज मुझे घर से भगा लाया है तो वो कहने लगी, बेटा तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रियाज भी एक करोड़पति बाप का बेटा था मगर मेरी सास जरा पुराने ख्यालात की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में कबूल नहीं किया था। उन्होंने मेरे और रियाज के बीच इख्तलाफात दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन रियाज एक अच्छा शोहर साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। ये भी खुदा का शुक्र था कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाती। खैर जहन्नुम तो अब भी बनी हुई थी क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ ये सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर अब मैंने अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लाचार सी लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रही थी क्योंकि वो मेरी बहुत पुरानी सहेली थी। स्कूल के दूर के रिश्ता करने वाली वो औरत कहने लगी कि ये लड़की यतीम है और अपने चाचा के साथ रहती है। उसकी चाची चाहती है कि ये जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी मैं कभी अपने शोहर की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। इसका हुस्न तो देखो, मेरा शोहर तो इसके इश्क में पागल हो जाएगा। वो औरत कहने लगी, बेटा ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, उसको हाथ से मत जाने दो। ये बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दबकर रहेगी। मेरा तो जी नहीं मान रहा था मगर मैंने उस आपदा नाम की लड़की का रिश्ता कबूल कर लिया था। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा शोहर सोफे पर बैठा हुआ था जबकि मेरी सास और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी नंद बोली थी, आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और अम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर रियाज बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि आमना के अलावा मैं किसी को कबूल नहीं करूंगा। वो मेरी बीवी है और मरते दम तक वही मेरी बीवी रहेगी। जहां सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वहीं रियाज की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद रियाज भी मेरे पीछे ही आ गया था। वो कहने लगा, तुम अम्मी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर ले रियाज। रियाज मेरी बात पर हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। रियाज कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को कबूल नहीं कर सकता, फिर चाहे वो तुम्हारी पसंद की हो या फिर अम्मी की पसंद की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की ख्वाहिश है। आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। रियाज ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया।
जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो ये है कि मुझे बच्चों की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो ये सब बस रियाज को खोने की डर की वजह से कर रही थी। खैर कुछ दिन बाद मेरे और रियाज के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। आपदा मेरी सहेली थी, और जिस दिन वो मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने रियाज के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वो पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। ये ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजारी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं रियाज से मुलाकात करना चाहती थी। मगर वो तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन से पूछा तो वो कहने लगी, रियाज तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब वो रोने लगी थी और बोली, रियाज ने मुझसे कहा है कि उन्होंने ये शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है, और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक न जताऊं, नहीं तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। मैंने सोचा कि रियाज मुझसे नाराज़ होंगे। खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे